والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسیر کاکل رخسار رہیے اور گدائے کوچے سرکار رہیے، اسیر کاکل رخسار رہیے اور گدائے کوچے سرکار رہیے، اور مدینے سے دوا آتی رہے گی، مدینے سے دوا آتی رہے گی، نبی کے عشق میں بیمار رہیے، مدینے سے دوا آتی رہے گی، نبی کے عشق میں بیمار رہیے۔ اور شاعر اسلام بڑے ہی اچھے انداز میں آگے لکھتا ہے کہ اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا، اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا، اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا۔ ہماری جماعت کے بہترین خطیب تشریف فرما ہے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ شاعر اسلام نے بڑے ہی انداز اور بڑے ہی اچھے طریقے سے اور اشعاروں کو لکھتے ہوئے بڑے ہی سوچ سمجھ کر کے قلم چلایا۔ آج کا یہ دور، ابھی ہمارے امام صاحب قبلہ تشریف فرما رہے تھے کہ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کا پڑھنا بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں شرک ہے، طرح طرح کی باتیں آج نکل کر کے آتی ہیں، لیکن میرے نبی نے آج سے 1443 سال پہلے اس زمانے کی خبر رکھتے ہوئے قدم اٹھا کر کے چلے، اور شاعر نے اپنے قلم کو بھی اس دور کے حساب سے چلانے کی کوشش کی۔ اگر شاعر نے کہا کہ اے نبی جس نے تمہیں دیکھا ہوگا اور لفظ پیار کو چھوڑ دیتا، تو آج کے اس دور کے لوگ کہتے کہ واہ واہ شاعر نے کیا خوب لکھا کہ اے نبی جس نے تمہیں دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا۔ تو نبی نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، تمام مکے کے جو ہے کفار نے دیکھا تھا، تو کیا نبی کو کافروں کے دیکھنے کے بعد بھی نور برسا ہوگا؟ تو شاعر اسلام نے قید لگائی، اے نبی پیار سے، لفظ پیار کی قید لگا دی تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا۔ اور جب فرشتوں نے اسے حشر میں پکڑا ہوگا، جب فرشتوں نے اسے حشر میں پکڑا ہوگا، ایک گنہگار سیاہ کار یہ کہتا ہوگا اور لے چلو مجھ کو میرے شافعِ محشر کے حضور، وہ جو چاہیں گے وہی فیصلہ میرا ہوگا، وہ جو چاہیں گے وہی فیصلہ میرا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غم گسار، بے قصوں کے بس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لعب دہن سے جوڑ دینے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سب کے پیارے آمنہ بی بی کے دلارے۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں کہ اگر پتھر کے قریب سے گزرے تو پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے، اگر دست مبارک کا اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اور اگر مشت مبارک کا اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی جا کر کے درخت سے کہے کہ اے درخت تجھے اللہ کا نبی بلاتا ہے، تو درخت دائیں ہلے بائیں ہلے، آگے ہلے پیچھے ہلے، اور اپنی جڑوں کو زمین سے نکال کر کے گھسیٹتا ہوا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں کہ ابو جہل مٹھی کے اندر کنکریوں کو بند کر کر کے لایا، اور لانے کے بعد کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو بتائیے میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ غیب کی بات جانتا ہے، اپنی مٹھی کی بات کو پوچھ رہا ہے، شرط لگا رہا ہے، آپ اگر نبی ہے تو بتائیے۔ جانتا تھا کہ نبی ہوں گے تو بتا دیں گے، رسول ہوں گے تو بتا دیں گے، کیونکہ نبی کا معنی ہی غیب کی بات بتانا ہے۔ آج کے انسان، آج کا یہ جو ہے گمراہ انسان کہتا ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، لیکن ابو جہل جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو پیٹ پیچھے کی بھی خبر ہوتی ہے، اس کو مٹھی کے اندر کی بند چیز کی بھی خبر ہوتی ہے۔ بتائیے بتائیے میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ میری آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل میں تجھے یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی کے اندر کی چیز کیا
क्या है? ये क्या कमाल हुआ? अरे कमाल तो ये है कि तेरी मुट्ठी के अंदर की चीज बोले कि वो क्या है? अबू जहल तो जो है, अबू जहल अपने आप को अबुल हिकम मानता था, हिकमतों का बाप मानता था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अरे तू अबुल हिकम नहीं, तू तो अबू जहल है, तू हाकिम और हालिक तू जो है, तो हिकमतों का बाप नहीं, तू तो जाहिलों का भी बाप है। अबू जहल ने सोचा, अरे क्या बढ़िया बात, तेरी मुट्ठी के अंदर तो चीज ऐसी है कि बोल ही नहीं सकती। अगर नबी कहते हैं, अगर मोहम्मद कहते हैं कि तेरी मुट्ठी के अंदर की चीज बोले तो बहुत बढ़िया, कहा क्या बहुत अच्छी बात है। अगर आप नबी हैं तो फिर मेरी मुट्ठी के अंदर की चीज बोलनी चाहिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ठीक है अबू जहल, सुन ले, देख ले। मेरे नबी ने जैसे ही अबू जहल की मुट्ठी की तरफ तो तवज्जो फरमाई, मुट्ठी के अंदर से जो है आवाज आना शुरू होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कंकरियों को फेंका और भागने लगा। पूछने वालों ने पूछा, सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया, ए कंकरियों जरा ये तो बताओ, तुमसे तो ये पूछा गया था कि तुम कौन हो, तुम्हें बताना था कि या रसूलल्लाह अबू जहल की मुट्ठी के अंदर हम कंकरियां हैं, तुमने कलमा पढ़ करके क्यों सुनाया? तो कंकरियों ने भी बड़ा ही प्यारा जवाब दिया था, ए दुनिया वालों, अबू जहल भी जानता था कि उसकी मुट्ठी के अंदर कंकरियां हैं और नबी भी जानते थे कि उनके जो मुट्ठी में जो है अबू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकरियां हैं। लेकिन अबू जहल नहीं जानता था कि उसके सामने जो ये नूरानी चेहरे वाले, ये सुनहरी जुल्फों वाले खड़े हुए हैं, ये कौन है? इसलिए हमने अबू जहल को बताया कि अबू जहल तू पूछता है तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है, लेकिन हम तुझे बताते हैं तेरे सामने जो खड़े हुए हैं ये अल्लाह के रसूल हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं और अल्लाह एक है, ये मोहम्मद के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के रसूल। इस्लाम आइए उसी रसूल हश्मी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। खुतबे के बाद इस आयत करीमा के पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया। रब्बे कदीर कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आयत पाक का मफ़हूम साफ साफ मतलब आपको बताता चलता हूँ, हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। पता चला कि जो दुनिया के अंदर आया उसको जाना जरूर है। आज हम किसी का 40वें की तैयारी कर रहे हैं, कल की कोई ना कोई हमारे 40वें की तैयारी करेगा, परसों हम उसकी करेंगे, कोई किसी की करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये दुनिया जो है आती रहेगी जाती रहेगी, ये प्रोग्राम चलते रहेंगे और लोग जो है मनाते रहेंगे। लेकिन याद रखो इस दुनिया में रहने वाला कोई नहीं है, इस दुनिया में आने वाले सब हैं, जाना भी सबको है, यहाँ रहना किसी को नहीं है। हम जो है तैयारी में लगे हुए हैं। आज जो हम तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी का पता नहीं कि अगला सांस लेंगे कि ना लेंगे, पता नहीं सुबह को खबर आ जाए कि जो रात माइक पर मौलाना बोल रहे थे आज उनका जो है उनका जो है दफन की तैयारी है, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जानी है, किसी को कोई खबर नहीं, लेकिन तैयारी में लगे हुए हैं। मकान ऐसे बना रहे हैं कि 100 साल तक हिल ना पाए, मकान ऐसे बना रहे हैं, अपने आप की जो है ऐसा साजिश में लगे हुए हैं। हर तरह से हम तैयारों में 100 साल तक की में लगे हुए हैं और खबर बिल्कुल नहीं कि कब क्या हो जाए। ये दुनिया अजब सराय फानी देखी, यहाँ की हर चीज आनी और जानी देखी, यहाँ की हर चीज आनी और जानी देखी, और जो जाके न आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा। जिस दिन ये जवानी चली गई तो आने वाली नहीं, और जिस दिन बुढ़ापा आ गया जाने वाला नहीं। मौत आ जाएगी, बुढ़ापा तभी जाएगा, जवानी चली जाएगी, आने वाली नहीं है। जिस जवानी के ऊपर आज हम घमंड कर रहे हैं, जिस जवानी के ऊपर तकब्बुर कर रहे हैं, जिस जवानी के मंगन में हम सब कुछ भूले हुए हैं, भाई का हक भूले हुए हैं, माँ बाप का हक भूले हुए हैं, अपने पड़ोसी का हक भूले हुए हैं, याद रखो सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। और जिस माल की खातिर हम सब कुछ भूल करके जो है उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, सबसे पहले यही माल हमारा साथ छोड़ देगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम सहाबा के अंदर तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी सहाबा सुनो सुनो, एक शख्स ऐसा था जिसके 3 दोस्त थे, 3, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो अचानक बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो इत्तेफाक की बात उसने अपने पहले दोस्त को बुलाया। बुलाने के बाद उससे सवाल किया, मेरे करीबी, है मेरे रफीक, है मेरे दोस्त, जरा ये तो बता कि मेरी तबीयत खराब है, हो सकता है कि इंतकाल हो जाए, दुनिया से कूच कर जाऊं, जरा ये बता कि तू मेरा साथ कब तक देगा।
मुझसे दोस्ती निभाता है कब तक साथ देगा। दोस्त भी ऐसा बनाओ जो दुनिया में भी साथ दे और आखिरत में भी साथ दे। दोस्त ऐसा बनाओ कि अगर खुद नेकी करे तो तुम्हें भी नेकी की दावत देता रहे। ऐसा नहीं कि दोस्त नमाज के लिए जा रहा है, अपने करीबी से अपने दोस्त से कहने के लिए तैयार नहीं। अरे ऐसे ऐसे दोस्त बनाओ कि नमाज के लिए जा रहा है तो आज मोबाइलों का जमाना है, फौरन तुम पे मैसेज कर दे अभी नमाज के लिए चलते हैं। अगर वो नमाज पढ़ाया तो तुम पे मैसेज कर दे कि जोहर पढ़ ली कि नहीं पढ़ी, तो वो तुम्हारा असली दोस्त है। और अगर नमाज का वक्त है और वो कहता कि जरा इधर फला जगह दावत में चलते हैं या फला महल्ले में टहलने के लिए चलते हैं, तो वो दोस्त नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है। वो यहाँ भी दुश्मनी निभा रहा है और तुम्हें जो है कल क़यामत में भी दुश्मनी का साथ ऐसा देगा कि तुम्हें अपने साथ जहन्नम में ले जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पूछा उससे, उसने बुलाकर कि बता कि मेरा साथ कहाँ तक देगा। उसका दोस्त कहने लगा है मेरे दोस्त घबराता क्यों है, तू बीमार है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी दवा के लिए साथ हूँ, तुझे ले जाने के लिए साथ हूँ। अगर तेरी मौत हो गई, अगर तेरा इंतकाल हो गया तो कहता कि मौत आने के बाद कब तक साथ देगा। अगर तेरी मौत आ गई तो मेरे दोस्त मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा, फिर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, फिर मैं तुझे जो है तेरा साथ नहीं निभा सकता। कहने लगा कि फिर कैसी दोस्ती, तो अभी से ही साथ छोड़ने की बात करता है, मौत आधी ही साथ छोड़ देगा तो दोस्ती किस बात की। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म होती है। मेरी आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि उसने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया, बुलाने के बाद उससे भी यही सवाल किया, बोल मेरा साथ कब तक देगा, मैं बीमार हो गया हूँ, मैंने चारपाई पकड़ ली है, खटिया पर पड़ गया हूँ, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मुझे कब तक तू मेरा साथ देगा। वो कहने लगा घबराता क्यों है, परेशान क्यों होता है, बीमार है तेरे साथ हो, दवा लाने के लिए साथ हो, अगर तेरा इंतकाल हो गया तो तेरा साथ दूंगा, तुझे अच्छी तरीके से नहलवाऊंगा, तुझे अच्छे तरीके से कफन पहनवाऊंगा, इतना ही नहीं तुझे कब्र के पास ले जाऊंगा, तेरी जनाजे की नमाज भी पढ़ूंगा, तेरे लिए दुआ भी करूंगा। लेकिन है मेरे दोस्त तुझे कब्र में उतारते वक्त अपने हाथों से बड़े ही अच्छे तरीके से आराम के साथ तुझे कब्र के अंदर उतरवाऊंगा, लेकिन कब्र के अंदर उतारने के बाद अभी तेरा साथ ना छोड़ूंगा। जब तख्ते लगाए जाएंगे तख्ते लगवाऊंगा, और मेरे दोस्त तख्ते लगाने के बाद मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा, फिर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। है कोई तुम में से ऐसा जो इससे आगे साथ दे दे। कहा कि फिर मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स ने कहा कि फिर तू भी मेरा सच्चा दोस्त कहाँ। अरे सख्ती की जगह जब परेशानी की जगह आ गई तो तू भी साथ छोड़ देगा, तो फिर सच्ची दोस्ती कहाँ हुई। तुझसे भी दोस्ती खत्म करता हूँ, तू भी मत आना मेरे करीब। उसने अपने तीसरे दोस्त को बुलाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, उससे बुलाकर के भी यही सवाल लगा दिया, बोल कब तक साथ देगा, मर सकता हूँ, बच भी सकता हूँ, बीमार हूँ, परेशान हूँ, बता साथ कब तक देगा। कहने लगा घबराता क्यों है, अरे परेशान क्यों होता है, अरे दिक्कत क्यों उठाता है, अरे मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, तो बीमार है तेरे साथ खड़ा तो हूँ, अगर तेरी दवा की जरूरत है तेरे साथ खड़ा हूँ, अगर मौत का फरिश्ता आएगा तेरे साथ खड़ा होगा, नजर आऊंगा, तेरी रूह निकाली जाएगी, मौत के रिश्ते से मैं कहूंगा कि इसकी रूह निकालते वक्त जरा आसानी बरतना। मेरे आका इरशाद फरमाते, हदीस पाक का मफहूम है कि उसका तीसरा दोस्त कहता है तेरी रूह निकाल ली जाएगी, तुझको नहलाया जाएगा, तेरे साथ रहूंगा, तुझको कफनाया जाएगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरी जनाजे की नमाज होगी, तेरे साथ रहूंगा। अरे घबराता क्यों है, परेशान क्यों होता है, तेरा साथ ना छोड़ूंगा। ऐसे नहीं, तुझसे दोस्ती की है दोस्ती, मोहब्बत की है मोहब्बत, ऐसे साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तेरी जनाजे की नमाज हो जाएगी, तेरा जनाजा उठाया जाएगा, साथ रहूंगा, तुझे कब्र में ले जाया जाएगा, साथ रहूंगा, लोग तख्ते लगाएंगे, तख्ते लगाकर के हट जाएंगे, मैं कब्र के अंदर तेरे साथ रहूंगा। अरे घबराता क्यों है, परेशान क्यों होता है, अभी भी साथ ना छोड़ूंगा। लोग तख्ते लगाने के बाद मिट्टी डाल देंगे, घर को वापस आना शुरू हो जाएंगे, मैं तेरे साथ रहूंगा। कोई एक शख्स खड़ा होकर के अज़ान पढ़ेगा, मैं तब भी तेरे साथ रहूंगा। आज तो अजानों पर भी दिक्कतें हैं। अरे भाई ये कौन से वक्त की अजान होगी कब्र के पास खड़े होकर के। अब उन जाहिलों से कोई ये पूछे कि क्या अजान सिर्फ नमाज के लिए होती है, उन्हें आज तक किताब में यही पढ़ने को नहीं मिला कि अजान जो है नमाज के अलावा और कामों के लिए भी होती है। आज तक उनके सामने से मसला ही नहीं गुजरा। बड़े बड़े अपने आप को अच्छे आलिम कहलाने वाले पक्के जाहिल, उन्हें ये नहीं पता कि अजान जो है सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि और काम के लिए भी है। आग लग जाए अजान पढ़ो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आग बुझती हुई नजर आएगी।
तेज बारिश होती हुई हो, ना रुक रही हो, अजान पढ़ो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बारिश रुकती हुई नजर आएगी। ओले पड़ रहे हो, रुक ना रहे हो, अजान पढ़ो, फौरन ओले रुकते हुए नजर आएंगे। अरे कब्र के पास खड़े होकर के अजान पढ़ो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहां तक अजान की आवाज आएगी शैतान भागता हुआ नजर आएगा, नकीरैन कब्र के अंदर आएंगे और तुम्हारा करीबी, तुम्हारा रफीक, तुम्हारा दोस्त जो है उन फरिश्तों के जवाब देने में आसानी से गुजर जाएगी। अभी जाहिलों को यही नहीं पता कि अजान पढ़ी कब कब जाती है, किस लिए पढ़ी, जब रट रखा है। अरे भी अजान हो रही है कब्र के पास, अभी नमाज कब पढ़ेंगे इसकी, हैं नमाज कब पढ़ेंगे ये? अरे नमाज तुम्हारे जनाजे की पढ़ लेंगे। और बताओ, नमाज की फिक्र कर रखी है, नमाज की है। अभी अजान का यही नहीं पता कि गुमराह कर रखा है, सीधे साधे लोगों को भड़काते हैं। अरे क्यों पढ़ते हो अजान, कोई फायदा नहीं, अजान पढ़ा करो। अगर कहीं रिश्तेदारी में जाओ, वहाँ कोई ना पढ़ने वाला हो, तुम पढ़ो। अगर कोई रोक हो तो कहो कि बोल, अजान का मुनकिर है मेरे पढ़ने का। अगर तुझे मेरे पढ़ने से इतराज है तो मुझसे क्या लड़ाई है तेरी, और अगर अजान से इनकार है तेरा तो मुसलमान का है तो अलग हट, मैं तो पढ़ूंगा। दोनों तरह से मैं तो पढ़ूंगा। अगर मुझसे तुझे इतराज है, मुझसे तुझे लड़ाई है कि अजान ये ना पढ़ दे तो पढ़ूंगा, तू रोक के दिखा। और अगर तुझे अजान से इनकार है कि अजान नहीं पढ़नी चाहिए तो भी पढ़ूंगा, तू मुसलमान नहीं कि अजान से इनकार करता है। देख रहे हो अजान के बारे में कितनी कोशिश कौन कर रहा है, पता तो है कौन कर रहा है। माइक को दबा दिए, अजानों के ऊपर कितने घपले हैं, कितने हंगामे हुए पड़े हैं। अजान फजर की नमाज, फजर की अजान होती है, हमारी नींद खराब हो जाती है, इशा की होती है, हम सो नहीं पाते हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं। एक माइक लगाओ, उसकी आवाज हल्की कराओ, चार चार माइक हटाओ। सबको पता है अजान का जो है इनकार करने वाला कौन है, उन्हीं के साथ हुए पड़े हैं। इन्हें यही नहीं पता कि हम अजान का इनकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो कहता है कि अजान पढ़ी जाएगी, मैं कब्र के अंदर रहूंगा, नकीरैन आएंगे, तुझसे सवाल पूछेंगे, मैं तुझसे जवाब दिलाने के लिए तैयार रहूंगा। तुझे बतलाऊंगा कि तुझसे पूछा जा रहा है कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तेरा रब अल्लाह कहते। तुझसे पूछा जाएगा कि तेरा दीन क्या है, मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि कहते मेरा दीन इस्लाम है। तुझसे पूछा जाएगा, तुझे किसी का नूरानी चेहरा दिखाया जाएगा, तुझे सुनहरी जुल्फों वाला कोई दिखाया जाएगा, चांद से मुखड़े वाला तुझे दिखाया जाएगा, उसका तुझे दीदार कराया जाएगा। तुझसे पूछा जाएगा, बोल इनके बारे में क्या कहता, मैं तुझसे कहूंगा अरे पूछते क्या हो फरिश्तों, अलग हट जाओ, पहले मुझे इनके कदमों से तो निपटने दो, मैं तेरा साथ दूंगा। और घबराता क्यों है? नकीरैन आएंगे, सवाल पूछेंगे, तू जवाब देगा, वो चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, रब की बारगाह में जाऊंगा, तेरे लिए बख्शिश का सामान लाऊंगा, जन्नत का लिबास लेकर के आऊंगा, तेरी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खुलवाऊंगा, अरे साथ ना छोड़ूंगा, तेरे साथ ही रहूंगा। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब व किताब होगा। रब तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सुबह क़यामत तक के सारे इंसानों को उनकी कब्रों से उठाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैदान महशर में पहुंचूंगा, तेरे लिए बख्शिश का सामान कराऊंगा, मीज़ान पर तेरे अमाल तोले जाएंगे, मैं तेरे अमाल तुलने में जो है कुछ आसानी दिलाऊंगा, तुझको जो है उस रात से गुजारा जाएगा, अभी तेरे साथ रहूंगा, और जब तक तू जन्नत में न चला जाए तेरा साथ ना छोड़ूंगा। कहने लगा फिर तो तू मेरा सच्चा दोस्त है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐसे तीन दोस्त सबके होते हैं, हर इंसान के तीन दोस्त होते हैं। पहला उसका दोस्त माल है, जिसके चक्कर में लोग सब कुछ भूले हुए हैं, बाप की खिदमत भूले हुए हैं, माँ की खिदमत भूले हुए हैं, भाई का हक भूले हुए हैं, भाई का हक खाने पर लगे हुए हैं, पड़ोसी को सताने में लगे हुए हैं, गरीबों को सताने में लगे हुए हैं, उस माल को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आंख मिटेगी वो माल सबका सब किसी और का हो जाएगा, जेब का पैसा भी निकाल लिया जाएगा, हाथ की घड़ी भी खोल ली जाएगी, कान से जो है बाली भी निकाल ली जाएंगी, पैरों से जो है चैनें भी उतार ली जाएंगी। न माँ का ख्याल होगा, न बीबी का ख्याल होगा, न बहन का ख्याल होगा, न बाप का ख्याल होगा, न दोस्त का ख्याल होगा, किसी का ख्याल नहीं होगा। जितना सामान होगा सारा निकाल लिया जाएगा। और ये दुनिया बड़ी ही बेवफा है। अगर हाथ में घड़ी है तो निकाल करके मैं बांध लूंगा, मेरे अब्बा की पहचान है। अगर अंगूठी है मैं पहन लेता हूँ, मेरे बाप की पहचान है। अगर माँ के पैर में चैने हैं, कान में कुंडल है, तो लड़की कह रही लाओ मेरी माँ की है, मैं पहन लूंगी, जरा पहचान रह जाएगी, मैं याद कर लिया करूंगी देख करके। लेकिन उसी बाप की खाट है,
इसको छूने के लिए तैयार नहीं। बिस्तर थोड़ा सा हारता था ना, क्योंकि बीमार पड़ा था खाट पर, इसलिए हार की दरी बिछा देती। अच्छी वाली तो खराब हो जाएगी, बाप है ना, इसलिए जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए कमाया, आज तू हार की दरी ढूंढ रहा है, हारता बिछोना ढूंढ रहा है। क्योंकि बीमार इसके नीचे अच्छा बिछा करके क्या करूंगा, खराब तो होना ही है, हारता बिछा रहा है। उसके लिए कोई नहीं अपनाने के लिए कि इसको मैं ले लूंगा। जो कपड़े लिबास पर, जो लिबास जो है बदन पर पहन रखा है, उसको छूने के लिए कोई तैयार नहीं। गड्ढा खोद करके डंडी से उठा करके उस गड्ढे में डाल दो। कीमती चीजें सब अपना रहे हैं और हर चीज को कोई छूने के लिए तैयार नहीं। ये दुनिया तो इतनी बेवफा है, इसके चक्कर में तुम लगे पड़े हो। अल्लाहु अकबर। बरादरान इस्लाम, वो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि पहला दोस्त उसका माल है, जो आंख मिचते ही उसका साथ छोड़ देगा, किसी और का हो जाएगा, तुम्हारा होने के लिए तैयार ही ना होगा। उसका दूसरा दोस्त जो कहता है कि कब्र तक साथ दूंगा, तख्ते लगा दी जाएंगे साथ छोड़ दूंगा, वो अहलो अयाल हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो दोस्त हैं, वो बाप, वो बेटा, वो भाई, वो बहन, वो सब कुछ है, साथ देते हैं, नहलाते भी हैं, कफनाते भी हैं, लेकिन जब कब्र में उतार दिया जाता है साथ छोड़ देते हैं। तख्ते लगाने के बाद सब खराब वापस आ जाते हैं। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तीसरा दोस्त जो आखिरत तक काम आएगा, वो उसके अमाल हैं, उसके नेक अमाल। अगर नमाज़ें पढ़ी है तो काम आएंगी, रोजे रखे हैं तो काम आएंगे, किसी गरीब का हक न मारा है, उसकी मदद की है तो काम आएंगे। अगर नेकियां की है, मिलादे सुनी है, मिलादे सुनाई है, उलमा इकराम का जो है अदब व एहतराम किया है, अपने मस्जिद के इमाम का अदब व एहतराम किया है, आरती में जुमा पढ़ने के लिए जाता है और जुमा पढ़ते हुए भी क्या देखता है, साहब को देखूं एड़ी सीधी है कि टेढ़ी है। जुमे में जाकर के भी इमाम साहब की एड़ी देखने जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उठती तो नहीं है। ये हाल है आज हमारी कौम का। इमामों के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। किसी जाहिल ने किसी आलिम से सवाल किया था, हजरत ये बताइए कयामत की कोई निशानी क्या है, पहचान कराइए। तो हजरत ने जवाब दिया था कि इससे बड़ी और पहचान तुझे क्या चाहिए कि जाहिल आलिम से सवाल कर रहा है। अरे इससे बड़ी और क्या पहचान चाहिए तुझे, और किससे बड़ी दलील कहां से लाऊं कि जाहिल आलिम से सवाल कर रहा है। ये हाल है आज हमारी कौम का। इमामों की जो है खिदमत करने की बजाय उन पर उंगलियां उठाते हैं, तंज कसते हैं। इमामों का अदब, इमामों का वकार नहीं पहचानते। ये इमाम ऐसे नहीं आए अपने घर से, 8-8, 10-10 साल मदरसों में मेहनतें करने के बाद इस मुसल्ले पर खड़े होने लायक बने हैं, और मुसल्ले पर खड़े होने के लिए ऐसे नहीं आ गए। ये इनका इंतखाब, इनको जो चुना गया है किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि मस्जिद के अंदर मुसल्ले पर खड़ा होने वाला इमाम मेरा नाइब है, मेरा नाइब। ये नबी के नाइब है, किसी के बाप की रैयत नहीं है, ये नबी के नाइब है। अगर इनकी तौहीन करोगे तो कल क़यामत के रोज नबी चेहरा फेर लेंगे। अरे इसने दुनिया के अंदर मेरे नाइब की तौहीन की है, मेरे नाइब के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, इसलिए इससे मेरा क्या रिश्ता। इसलिए मस्जिदों को इमामों की खिदमतें क्या करो, उनका अदब एहतराम क्या करो, उनका ख्याल रखा करो, क्योंकि ये इमाम कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सदे सदे का हिसाब व किताब होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। ऐसे हाल में लोग निकल करके आएंगे और कहेंगे इमाम साहब आज हमें थोड़ा सा बदला मिल जाएगा। किस बात का बदला? औरतें कहेंगी, कोई बूढ़ी माँ कहेगी, इमाम साहब मैंने सर्दी का दिन था, सर्दी की रात में आपके लिए सहरी का इंतजाम किया और ताजा ताजा खाना पहुँचाया था, सर्दी में कांप रही थी, लेकिन आपके ताजा खाने का इंतजाम किया। कोई आएगा, इमाम साहब किबला मैंने गर्मी के मौसम में आपके लिए जो है पानी भर के दिया था वुज़ू के लिए, कि आज कुछ मिल सकता है। कहे इमाम साहब इरशाद फरमाएंगे, ठहर जाओ, अगर मुझे कुछ मिलेगा तो तुम्हें भी मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा तो तुम्हें भी मिलेगा। और मुनादी देने वाला मुनादी देगा, अरे कहाँ है नाइब लोग, वो बाहर मैदान में आ जाए, नबी के नाइब बाहर आ जाए, अल्लाह के वली बाहर आ जाए, औलिया बाहर होंगे, नाइब बाहर होंगे, आलिम बाहर होंगे, फाजिल बाहर होंगे, मुफ्ती बाहर होंगे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ये सारे के सारे मेरे नबी के नाइब, मेरे नबी के दीन पर चलने वाले, मेरे नबी के दीन को फैलाने वाले, ये बाहर है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जाओ दुनिया के अंदर जिसने तुमसे मोहब्बतें की है, इस महफिल में ढूंढ करके अपने साथ जन्नत में ले जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा अकीदा है, ऐसा ऐलान होगा, जरूर होगा। वरना अगर अदल चलने लगा ना, रब का अदल
तो कोई भी जन्नत की तरफ नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, अगर रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया बोल मैंने तुझे आंख की नेमत अता की थी, इसका बदला दे, तो कहां से? अल्लाह की दी हुई आंख की नेमत का बदला पूरी जिंदगी तुम सजदे से सर ना उठाओ अदा नहीं। तो अदल तो ये है कि आंख का बदला चाहिए, हाथ का बदला चाहिए, पैर का बदला चाहिए, तुझे जबान दी जबान का बदला, तो बदला कहां से? लेकिन जब रब का फजल आएगा तो इरशाद फरमाएगा गुनाहगार कहां है, जाओ अपने नाइबों के साथ जन्नत में चले जाओ। कहां है गुनाहगार? आओ मैदान में। तुमने मेरे नबी का मिलाद मनाया था, उसमें बैठ कर के कभी इरशाद होगा तुमने सुभान अल्लाह कहा था, वही मुझे कबूल हो गया। कभी कहेगा कि तुमने मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ा था, मुझे वही पसंद आ गया, जाओ उसी के बदले में जन्नत में चले जाओ। ऐसे जन्नतें मिलेंगी, वरना सब जहन्नम में जाते हुए होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सर्रे सर्रे का हिसाब किताब होगा, कोई किसी का फुर्सानी हाल ना होगा। एक गुनाहगार सिहकार बदकार उसके नामा अमाल तोले जा चुके होंगे, मीज़ान पर उसका वजन हो चुका होगा, फरिश्ते उसको लेकर के जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, जहन्नम के करीब ही होंगे। आवाज देने वाला आवाज देगा, फरिश्तों ठहर जाओ, इस मेरे उम्मती को कहां ले जाते हो, जरा रुक जाओ। क्या मजाल कि मेरे आका से कह सके कि या रसूल अल्लाह इसका वजन हो चुका है, इसके अमाल खुल चुके हैं, इसे जहन्नम में ले जा रहे हैं। क़यामत का दिन, आखिरी बात कह रहा हूं, फिर हज़रत जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमाने के लिए आपके सामने आने ही वाले हैं। आखिरी बात है, किसी की क्या मजाल, क्योंकि क़यामत का दिन नफ्सी नफ्सी का आलम, जर्रे जर्रे का हिसाब व किताब। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सुबह क़यामत तक के इंसानों को एक मैदान में इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा करने का मकसद ये नहीं है कि उसके अमाल नामा तोला जाए, ये नहीं है कि उनके हाथों में जन्नत के और जहन्नम के परवाने थमाए जाए, बल्कि मकसद ये है कि दुनिया के अंदर जो इंसान ये कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, कोई कहता है कि नबी को अपने भाई के जैसा समझो, कोई कहता है कि नबी को इल्म गैब नहीं, सबको एक साथ इकट्ठा करने के बाद रब तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब का मकाम, मेरे नबी का मकाम क्या है, सब एक साथ देख लो। तो फरिश्तों की क्या मजाल के कुछ कह सके। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे इसके अमाल को दोबारा वसन करो, लाया जाएगा मीज़ान पर, उसके अमाल को फिर से तोला जाएगा। नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, रास्ता नहीं है। मेरे आका अपनी जेब से कुर्सी निकालेंगे, उसके नामाए अमाल में नेकियों वाले पल्ले में डाल देंगे। पुर्जी का डालना होगा, फौरन वजन जो है नेकियों का ज्यादा हो जाएगा, नेकी वाला पल्ला ऊपर जाने लगेगा, गुनाह वाला नीचे आने लगेगा। उस मीज़ान का, उस तराजू का जो है नियम ये होगा कि जिसका वजन ज्यादा होगा वो पल्ला ऊपर होता हुआ होगा। अगर किसी के गुनाह ज्यादा होंगे तो पल्ला ऊपर चला जाएगा, नेकी वाला नीचे रह जाएगा। नेकी ज्यादा होंगी तो नेकी वाला पल्ला ऊपर जाएगा, गुनाह वाला नीचे रह जाएगा, ताकि सब देख ले कि इसकी नेकियां ज्यादा है कि इसके गुनाह ज्यादा है। अल्लाहु अकबर। जैसे नेकी वाला पल्ला ऊपर होगा, अब उसके हाथ से जो है जहन्नम का परवाना लेकर के जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। फरिश्ते लेकर के चलेंगे, कहेगा ठहर जाओ, पहले पूछते हूँ या रसूल अल्लाह जरा ये तो बताओ, मैं तो गुनाहगार था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था।